Assalamu alaikum, dear students of class 9. In our last video, we studied about Mohenjo-daro. We discussed the comprehension as well as textual study in that particular video. Now it is the turn for a study of the structures that we left for the next video. Once again, I should tell you that you have a book and you should open that and study with me, read with me, point it out on your book. Number one, study of structure is few and a few. Let's see what is the difference between few and a few. Let's see the examples first. Few people live there today, but about 4,500 years ago, it was a large, busy city. बहुत थोड़े से लोग आज वहाँ रहते हैं, लेकिन तकरीबन 4,500 साल पहले it was a large, busy city. ये एक बड़ा और मसरूफ शहर था. Number 2, you are sad because you have a few friends. तुम अफसरदा हो, तुम गमज़दा हो क्योंकि तुम्हारे बहुत थोड़े से दोस्त हैं. कम दोस्त हैं, a few, चंद. Number 3, I have a few biscuits here. If you would like them, मेरे पास ही थोड़े से बिस्किट्स हैं. क्या आप इन्हें लेना पसंद करेंगे? मतलब जब हम किसी को ऑफर करते हैं तो would you like them? Would you like to have some? Would you like to have a few? तो a few के माने हैं थोड़े, चंद. Next, he has taken a few lessons in English and can write simple short sentences now. उसने अंग्रेजी के थोड़े से सबक ले रखे हैं, कुछ लेसन्स ले रखे हैं, and can write simple short sentences now. और अब वो छोटे मुख्तसर जुमले लिख सकता है. Let's see what is the note about. There should be some difference. There is some difference. What is that difference? Few is the opposite of many. Few मुतजाद है या जिद है, opposite है किसका? Many का. Many के क्या मायने? बहुत सारे. तो बहुत सारे की जो जिद है वो क्या है? बहुत कम, बहुत थोड़े. It means not many. इससे मुराद है ज्यादा नहीं. Only a small number. सिर्फ एक छोटी सी तादाद. It is negative in meaning. ये मायनों के लिहाज से मनफी है. And means almost none. और इससे मुराद है तकरीबन ना होना. A few shows the presence of some. इसके मुकाबले में a few shows the presence of some. कुछ की हाजिरी को दिखाता है, कुछ की मौजूदगी को जाहिर करता है. Rather than its absence. बजाय कि उसकी गैर हाजिरी को दिखाने. तो few का मतलब है तकरीबन ना होना और a few का मतलब है थोड़े, चंद. Very few can be used in place of few in the above examples. ऊपर जो examples हमने read की उनमें ये कह रहे हैं कि very few का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जहां हमने few का इस्तेमाल किया. पहले ही जुमले में आया था, क्या था वो पहले जुमले में? Few people live there today. आज भी कुछ लोग वहां रहते हैं. वो कुछ कितने हैं? तकरीबन ना होने के बराबर. तो वहां few की जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? Very few. देखिए few के मायने तो हैं ही थोड़े से, लेकिन जब हम कहते हैं very few तो इसका मतलब हो जाता है almost none. Almost none. अगला स्ट्रक्चर देखिए. What is that? Not many. क्या मायने हैं not many के? Not many means ज्यादा नहीं. Not many boys have got this sum right. ज्यादा लड़कों ने ये सवाल सही हल नहीं किया है. Note. Note not many is preferable to few in this sense. अगर इस तरह का कोई जुमला बनाना हो, मतलब लोग हैं, लड़के हैं, तो वहां पे कोई तो उनकी तादाद होगी ना. जैसे अगर फर्ज कीजिए कि 20 बॉयज ने क्वेश्चंस किए हैं और उनमें से अगर 3 या 4 ने ठीक किए हैं तो हम उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि not many. Not many in contrast to there are 20 boys in total, so we can say that if 5 or 6 or 7 will be counted as not many. अच्छा, तो फिर 10 will be counted as
half of the boys, and 15 and 16 will be many boys. Many boys have got this sum right. Many boys have got this sum right. जब भी हम बात करते हैं तादाद की, तो वो हमेशा किसी कंपैरिजन में इस्तेमाल हो रही होती है, किसी कंपैरिजन में इस्तेमाल हो रही होती है। अब 20 में से अगर किसी सिर्फ 1 या 2 ने किया होगा तो हम कह सकते हैं few have done this right. Few have done this sum right. Okay, अगला स्ट्रक्चर देखिए। देखिए मैं फिर याद दिला दूं आपको कि when you are reading from the book or listening to this video, putting your fingers over there and then repeating that sentences after me will help you understand the things. The next structure is how many. बहुत आसान है, हम पढ़ते आ रहे हैं क्या मैंने, how many कितने, how many boys कितने लड़के, how many people कितने लोग, how many things कितनी चीजें. So how many boys are in the class? क्लास में कितने लड़के हैं. How many people are there? वहां पे कितने लोग हैं. What is the next structure? Nobody, nothing, no. Nobody, nothing, no. सब में क्या चीज कॉमन है? No. No के मतलब क्या है? नहीं. यानी हम जब निगेट करते हैं किसी चीज को, मना करते हैं कि नहीं है, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं nobody. समझ में भी आ रहा है पहले से कि nobody कब यूज होगा? जब कोई किसी अफराद की बात हो रही होगी, लोगों की बात हो रही होगी. जैसे हम ये पूछते हैं देख के आओ वहां कमरे में कोई है, तो अगर वहां पे कोई नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे? There is nobody in the room. There is nobody in the room. हम पूछेंगे कि भाई आपकी पॉकेट में कुछ है, तो वहां पे nobody तो नहीं हो सकता ना. वहां पे आप क्या कहेंगे? There is nothing in my pocket. और इन दोनों के बजाय आप सिंपल सा एक आंसर दे सकते हैं, और वो क्या है? No. नहीं. So what are the sentences over here? Number 1, nobody knew anything about it. कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था. Next, nobody went to see him in the hospital. Nobody went to see him in the hospital. अस्पताल में मिलने उससे कोई भी नहीं गया. To see के माने मिलने के भी होते हैं. To see माने देखना, to see माने मिलना, मुलाकात करने को, देखने को to see का इस्तेमाल करते हैं. फिर पढ़िए इस जुमले को. Nobody went to see him in the hospital. कोई उससे अस्पताल में मिलने नहीं गया. Next, no one lives in this house. कोई इस घर में नहीं रहता है, यानी कोई शख्स भी इस घर में नहीं रहता है. Next, no one helped him. किसी ने उसकी मदद नहीं की. Next, nothing was known about the city. इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जाना जाता था. Nothing was known about the city. इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जाना जाता था. Next, I can see nothing through the window. I can see nothing through the window. मैं खिड़की के आर पार या खिड़की में से कुछ भी नहीं देख सकता. I can see nothing through the window. क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? It is dark outside, therefore I can see nothing through the window. There is nothing in the glass. There is nothing in the glass. ग्लास में कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना शरबत है, ना कोक है. So what will you say? There is nothing in the glass. देखिए इसका नोट इंटरेस्टिंग है, पढ़िए. Nobody denotes absence of persons or person. Nobody गैर हाजिरी को जाहिर करता है. किसकी गैर हाजिरी को जाहिर करता है? किसी शख्स की या लोगों की गैर हाजिरी. Nothing is used for inanimate objects. Inanimated, गैर मुहर्रिक, गैर मुहर्रिक जो खुद से हरकत नहीं करते. Inanimated objects. तो inanimated का ऑपोजिट क्या होगा? Animated. जैसे आप देखते हैं एनिमेटेड मूवीज, एनिमेटेड कार्टून्स, तो उनमें जो वो चीजें हैं वो क्या करती हुई नजर आती हैं आपको?
हिलती जुलती मूव करती भी नजर आती हैं। दैट आर व्हाट यू कॉल एनिमेटेड। एनिमेटेड का ऑपोजिट क्या है? इनएनिमेटेड। नो कैन बी यूज फॉर बोथ, जबकि नो का इस्तेमाल दोनों के लिए किया जा सकता है, एनिमेटेड के लिए भी और इनएनिमेटेड के लिए भी। All the three show absence and are negative. तीनों के तीनों अल्फाज, what are the three words that we have read about? Nobody, nothing, no. तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, मनफी हैं, and shows the absence और गैर हाजिरी को जाहिर करते हैं। ओके, अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या है? a lot of। a lot of के क्या मीनिंग्स हैं? बहुत ज्यादा। सर जॉन मार्शल knew a lot about old things। जॉन मार्शल साहब पुरानी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। He knows a lot about birds। He knows a lot about birds। वो परिंदों के बारे में बहुत कुछ जानता है। Next, there is a lot of water in this jug। इस जग में बहुत सारा पानी है। Next, what a lot of mangoes are on the tree। What a lot of mangoes are on the tree। कितने सारे आम हैं, कितने सारे आम हैं इस दरख्त के ऊपर। A lot of means much। A lot of से मायने हैं much, ज्यादा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? मेड ऑफ। मेड ऑफ का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम बताना ये चाहते हैं कि कोई चीज किस मटेरियल से बनी हुई है। तो नोट में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे अभी, कि मेड ऑफ के बाद यूजुअली किसी मटेरियल का नाम आता है। मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ कॉटन, मेड ऑफ पेपर, मेड ऑफ आयरन। दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ आयरन। गॉट इट? मेड ऑफ से बना हुआ। तो each house was made of large burnt bricks। हर एक मकान बड़ी और पक्की ईंटों का बना हुआ था। नेक्स्ट, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये मेज लकड़ी से बनी हुई है। नेक्स्ट, दिस शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। ये कमीज कॉटन से बनी हुई है। नोट, मेड ऑफ इज यूज्ड when an article is made of some material। मेड ऑफ का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई आर्टिकल, जब कोई शय, कोई चीज किसी मटेरियल से बनी हुई हो। अगला स्ट्रक्चर क्या है? वेरी मच, बहुत ज्यादा। यू कैन इमेजिन, तुम तसव्वुर कर सकते हो, हाउ वेरी मच सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड द पीपल वर। हाउ वेरी मच, कितने ज्यादा हैरान थे वो लोग, पुरजोश थे वो लोग। नंबर 2, नहीं भाई लतीफा नहीं है। He loves his wife very much। वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। नेक्स्ट, नॉट वेरी मच, ज्यादा नहीं। वेरी मच उसका ऑपोजिट, नॉट वेरी मच। आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ मूवीज। मैं मूवीज का बहुत ज्यादा शौकीन, फॉन्ड ऑफ शौकीन। मैं मूवीज का बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूं, यानी मुझे मूवीज देखने का ज्यादा शौक नहीं है। नंबर 2, आई डोंट लाइक मैंगोज वेरी मच। मुझे आम बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। इसमें से आई काट दें क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, और बकौल मिर्जा गालिब के सिर्फ गधों को ही नहीं पसंद होते। आई डोंट लाइक मैंगोज वेरी मच। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, क्या मायने नॉट एट ऑल के? बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। नॉट एट ऑल, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश एट ऑल। वो बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोलती है। वो बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोलती है। नहीं, आपकी बात नहीं हो रही। आई नो यू डू। नेक्स्ट, वेरी वेल। व्हाट इज वेरी वेल? अच्छा, मैं ये पढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे वो एक बच्चे का कमेंट याद आ रहा है कि
उसने किसी वीडियो में कमेंट किया कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बस खुद ही खुद बोले जा रहे हैं। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, इट्स अ न्यू सेटअप, इट्स अ न्यू थिंग. I wonder that he had a book in his hand or not. What is he expecting? Yeah, what are you expecting about this? तो अभी तो यही पैटर्न है, यही तरीका है, यही अंदाज है. किताब हाथ में उठाइए, साथ में बैठ के पढ़िए और रिकॉर्डेड वीडियो का फ़ायदा उठाइए इफ़ यू वांट टू. मैंने लास्ट वीडियो में भी सजेशन दी थी आपको कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, उससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो अपनी प्रेजेंस तो शो कीजिए. सिर्फ एक स्टूडेंट थी जिसने अटेंडेंस मार्क की उधर आके. सो मैं आई विल रिपीट अगेन that if you people are watching the videos, in fact you should watch the videos. What are you waiting for? A lot has already been done, so it's my task, it's my job that I should tell you that don't waste any more time. Okay, well, come back. Very well. Very well means बहुत अच्छे, बहुत खूब. She speaks English very well. वो अंग्रेजी बहुत खूब बोलती है, बहुत अच्छी बोलती है. I can sing this song very well. मैं ये गाना बहुत अच्छा गा सकता हूँ या बहुत खूब गा सकता हूँ. मैं ये गाना बहुत अच्छा गा सकता हूँ. नहीं, यहाँ नहीं गाऊंगा वरना आप सब जो देख रहे हैं वो भी भाग जाएंगे. So I can sing this song very well. Not very well. So very well का opposite क्या हो जाएगा? Not very well. ज़्यादा अच्छा नहीं. He did not remember the poem very well. He did not remember the poem very well. उसने नज़म बहुत अच्छे से याद नहीं रखी या नहीं की. She sings but not very well. वो गाती है मगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गाती है. She sings but not very well. वो ज़्यादा अच्छा नहीं गाती है. अगले स्ट्रक्चर में देखिए नंबर 6 पे. व्हाट इज दैट? मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, द रेस्ट ऑफ और सम ऑफ. मोस्ट ऑफ के मायने बेशतर, ज्यादातर, और मेनी ऑफ के मायने बहुत से, और द रेस्ट ऑफ बाकी मानदा, बच जाने वाले, और सम ऑफ में से कुछ. अभी में से कुछ क्या होता है? सम ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कुछ. सम ऑफ अस, हम में से कुछ. सम ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कुछ. सम ऑफ द डेज, दिनों में से कुछ. इस तरह से पढ़ो. यू कैन स्टिल सी द ग्रेट हॉल. आप अब भी वजीमुशान हॉल देख सकते हैं. वेयर मोस्ट ऑफ द ग्रेन वॉज स्टोर्ड, जहां ज्यादातर अनाज का जखीरा किया जाता था. नंबर 2, most of us are from villages around the school. हम में से ज्यादातर का ताल्लुक स्कूल के आसपास या स्कूल के इर्द गिर्द जो गांव देहात हैं उनसे है. Most of us are from the villages around the school. स्कूल के इर्द गिर्द जो गांव देहात मौजूद हैं, हम में से ज्यादातर का ताल्लुक उनसे है. Next, many of the objects had pictures on them. Many of the objects, बहुत सारी चीजों पर तस्वीरें बनी हुई थी. अब जो चैप्टर हमने पढ़ा है मोहनजोदड़ो का, तो उसी रेफरेंस में बात हो रही है कि जो चीजें खुदाई में मिली थी वहां से, आपने देखा था, जो कि म्यूजियम में भी ऑन एग्जीबिशन है, कि वो क्या चीजें थी. वहां से पॉट्स मिले थे, ब्रिक्स मिली थी, टॉयज मिले थे, मेटल टूल्स मिले थे, पॉटरी मिली थी. ये बहुत सारी चीजें थी. मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल था. तो मेनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैड पिक्चर्स ऑन देम. उनमें से ज्यादातर चीजों के ऊपर तस्वीरें थी. नेक्स्ट, सम ऑफ द विलेजर्स टुक द पीसेस ऑफ ओल्ड पॉट्स टू सर जॉन मार्शल. देहातियों में से कुछ, गांव वालों में से कुछ, took the pieces of old pots, उन पुराने बर्तनों के टुकड़े ले गए
टू सर जॉन मार्शल साहब के पास। नेक्स्ट, सलीम एंड करीम हैव डन द एक्सरसाइजेस। सलीम और करीम ने एक्सरसाइजेस मशक़ें कर ली हैं। सलीम और करीम मशक़ें कर चुके हैं। दे मे सिट डाउन, वो बैठ जाएं। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल कीप स्टैंडिंग, बाकी तलबा खड़े रहेंगे। बाकी तलबा खड़े रहेंगे। आप में से 10-12 को पनिश मिली हुई है, आपसे कहा गया है कि आप अपना काम कंप्लीट करें। ऐसे में आप में से जो सलीम और करीम हैं उन्होंने काम खत्म कर लिया है, तो क्या कहा जाएगा कि सलीम और करीम आप बैठ जाएं और बाकी लड़के खड़े रहेंगे। उसे अंग्रेजी में आप इस तरह से कहेंगे। नेक्स्ट, परहैप्स यू कैन आंसर सम ऑफ माई क्वेश्चंस। परहैप्स शायद, परहैप्स शायद, क्या, यू कैन आंसर सम ऑफ माई क्वेश्चंस, शायद आप मेरे कुछ सवालों के जवाबात दे सकते हैं। मेरे सवालों में से कुछ के जवाबात दे सकते हैं। नेक्स्ट, इनटू और आउट ऑफ। इनटू, इनटू क्या है? जब आप मूवमेंट करते हुए किसी जगह पे एंटर होते हैं। और आउट ऑफ क्या है? जब आप उस जगह से बाहर निकलते हैं। अब जगह से क्या मुराद है यहाँ पे? मिसाल के तौर पर रूम, क्लासरूम, पार्क, सिनेमा हाउस, कोई भी एनक्लोजर, कोई भी एनक्लोजर, ENCLOSURE, enclosure. I am going into the ground. Now I am going into the park. और आप क्या बोलते हैं जब आपको क्लास में दाखिल होना होता है? तो May I come into the class? May I come into the class? Excuse me, sir. May I come into the class? तो जब हम मूव करते हुए किसी जगह में अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है? into। और जाहिर है जब मूव करते हुए बाहर वापस निकलते हैं तो क्या यूज होता है? आउट ऑफ। कार्ट्स वुड कम राइट इनटू द सिटी। कार्ट्स, ठेले, शहर के बीचों बीच तक आया करते थे। He fell into the well. He fell into the well. Well माने कुआं। वो कुएं में गिर गया। वो कुएं में गिर गया। Next, they pulled him out of the water. They pulled him out of the water. उन्होंने उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला। उन्होंने उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला। Next, come out of the classroom and play on the ground. क्लासरूम में से बाहर निकल आओ और यहाँ बाहर आके मैदान में खेलो। Come out of the classroom. क्लासरूम में से बाहर आ जाओ and play on the ground. और ग्राउंड में आके खेलो। तो ये वो स्ट्रक्चर्स थे जो हमें स्टडी करने थे। अब आप इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या है? फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग few with the following verbs. Few with the following verbs. Verbs दिए हुए हैं, इनके साथ few का इस्तेमाल करना है। ये याद रहे कि few के इस्तेमाल में और a few के इस्तेमाल में फर्क है। ये नहीं होगा I know a few people, ये नहीं कह रहे आपसे। आपसे कह रहे हैं few का इस्तेमाल करें। जैसे he knows few. He knows few about anatomy. वो एनाटॉमी के बारे में, ये चलिए बायोलॉजी के बारे में बहुत कम जानता है। He knows few. He knows few about biology. He hasn't studied. Most of us know few about Chinese language. हम में से ज्यादातर लोग चाइनीज लैंग्वेज के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। सिंग, सिंग माने गाना। अब जुमला आ रहा है मेरे जहन में कि उसने थोड़ा गाया मगर अच्छा गाया।
तो क्या क्या लिखेंगे आप इस जुमले के लिए? She sang few but well. She sang few but well. इसी तरह से write और take और go का जुमला आप बनाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं? फ्रेम 5 सेंटेंसेस यूजिंग अ फ्यू विद द फॉलोइंग नाउन्स। अब यहाँ अ फ्यू का इस्तेमाल करना है। अ फ्यू का मतलब है थोड़े। अ फ्यू बॉयज, अ फ्यू टीचर्स, अ फ्यू डेज, कुछ, थोड़े, चंद के सेंस में इस्तेमाल करना है। व्हाट आर द नाउन्स गिवन ओवर हियर? पर्सन्स, पेजेंट्स, पेजेंट्स। पेजेंट्स कौन होते हैं? काश्तकार, काश्तकार। क्लर्क्स, वर्कर्स, मजदूरों को भी कहते हैं, काम करने वालों को भी कहते हैं वर्कर्स। कारकुनों को भी कहते हैं डॉक्टर्स। A few doctors in this hospital are heart specialists. इस अस्पताल में थोड़े ही हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। या जैसे अभी हम जिस पैंडेमिक में से गुजर रहे हैं, हम कहेंगे a few doctors in this hospital died of corona. Died of corona. Persons, अब इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए a few के साथ। A few persons these days talk politely. इन दिनों बहुत थोड़े से ही लोग हैं जो नरमी से बात करते हैं, पोलाइटली। इस तरह के जुमले आप बनाएंगे। अगली एक्सरसाइज में देखिए क्या करना है आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस एंड यू नो दैट स्टडी विद स्ट्रक्चर्स की भी और एक्सरसाइजेस की भी आप ट्रांसलेशन भी करेंगे। ठीक है, आप जुमला लिखेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे सो दैट you know that you understood it or not. It is compulsory. What are the structures given? The phrases given: most of, the rest of, some of, a few, a lot of, a little, and a lot. Number 1, dash the people in Pakistan are hardworking. पाकिस्तान में कितने लोग हैं? About 23 crores. 22 to 23 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। तो उसके हिसाब से हमको क्या कहना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने लोग मेहनती हैं? Obviously the answer will be most of the people in Pakistan are hardworking. Most of the people in Pakistan are hardworking. Next, only dash the workers are dishonest. सिर्फ कुछ से तो मैंने बता ही दिया। ओनली डैश द वर्कर्स, तो ओनली फ्यू द वर्कर्स तो नहीं होगा। तो सिंपल, या तो आप अंडरस्टैंड करके करें या फिर अगर क्या, वैसे तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपने प्रूफ भी लगाना है, गैस भी करना है, तो स्ट्रक्चर के साथ देखिए क्या चीज है। ओनली सम ऑफ द वर्कर्स, ओनली some of the workers are dishonest. सिर्फ कुछ कारकुन बेईमान हैं। Number 3, dash knowledge is a dangerous thing. Dash knowledge is a dangerous thing. What is there? It's a proverb. A little knowledge is a dangerous thing. और proverbial इसकी जो उर्दू है वो बड़ी मजेदार है। वो क्या है? वो क्या है बच्चों? A little knowledge is dangerous thing. नीम हकीम खतरा जां। उर्दू में क्या कहते हैं हम? नीम हकीम खतरा जां। अब क्लास में होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें और डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नाराज हो जाएंगे।
लेकिन ये सिर्फ नीम हकीम पे ही नहीं अप्लाई होता, सारे पेशों के ऊपर, सारे शोबों के ऊपर होता है। नीम हकीम पतरा जां, इसी तरह से नीम मुल्ला पतरा ईमा। नीम मतलब जो मुकम्मल, जिसको अपने इल्म के ऊपर, अपने काम के ऊपर अबूर ना हो। तो हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं वो टोटके और मशवरे देते रहते हैं ना, खासतौर पे बीमारियों के दौरान। तो उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आया समझ में? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। बट यू डू नॉट नो मच अबाउट मी। लेकिन आप मेरे बारे में अभी ज्यादा नहीं जानते। Am I right? मैंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है, लेकिन अभी आप मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते। नेक्स्ट। अच्छा, ये आ लॉट, आ और लॉट हमेशा अलग अलग करके लिखते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो इसे मिला के लिखते हैं। इट इज क्वाइट स्टूपिड, राइट? अ लॉट, अ लॉट लिखते हैं ना हम आमतौर पे, थैंक्स अ लॉट। तो वहां पे थैंक्स और अ लॉट आपस में गले मिल रहे होते हैं। तो अ अलग है और लॉट अलग है। गॉट इट? थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट। Salim, Hamid and Kareem stayed with Razia in the hospital until Dash us came back. सलीम, हामिद और करीम अस्पताल में रजिया के साथ ही ठहरे। रजिया शायद अस्पताल में दाखिल है, तो सलीम, हामिद और करीम वहीं पे ठहरे। Until, जब तक the rest of us came back, जब तक हम बाकी लोग वापस नहीं आ गए। जब तक हम बाकी लोग वापस नहीं आ गए तो सलीम, हामिद और करीम रजिया के साथ अस्पताल में ठहरे। नेक्स्ट। I have chosen dash books for the library. मैंने लाइब्रेरी के लिए डैश बुक्स मुंतखब की हैं, चुनी हैं। तो अब आपने ज्यादा की हैं तो आप कहेंगे मैनी, आपने थोड़ी की हैं तो आप कहेंगे अ फ्यू। अगर आपने थोड़ी की हैं तो आप कहेंगे अ फ्यू। आप अ लॉट ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप चूज करते हैं तो जाहिर है बहुत ज्यादा नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? आई हैव चोजन अ फ्यू बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। मैंने लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबें चुनी हैं। नेक्स्ट। देयर इज डैश टॉक अबाउट सिविल डिफेंस दीज डेज। देयर इज डैश टॉक अबाउट सिविल डिफेंस दीज डेज। इन दिनों शहरी दिफा के बारे में डैश बात होती है। शहरी दिफा, सिविल डिफेंस, शहरी दिफा। अभी आप देखते हैं ना कि कई तरह की प्रॉब्लम्स हमें सामने आते हैं, मुश्किलात आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इदारे होते हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल फायर फाइटर्स हैं, बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड्स हैं, स्काउट्स हैं, इसी तरह से एम्बुलेंस सर्विसेज वाले हैं, जिनको सारी दुनिया में हम फॉर एग्जांपल रेस्क्यूअर्स भी कहते हैं। तो रेस्क्यू का एक इदारा होता है। और इसी तरह से हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए हम जो कुछ सीखते हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल सिविल डिफेंस, शहरी दिफा। और शहरी दिफा के मुख्तलिफ इदारे। वी हैव गॉन थ्रू द रेन्स। अभी हम रेन्स से गुजरे हैं। आपने देखा कि देयर हैज बीन फ्लडिंग इन मेनी एरियाज, देयर हैव बीन मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द रेन्स। लोगों के नुकसानात होते हैं, परेशानियां होती हैं। तो वहाँ पे हमें इसी तरह से किसी भी और कैटास्ट्रॉफी के दरमियान, किसी आफत के दरमियान, किसी जंग के दौरान, किसी लड़ाई के दौरान, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जंगें तो अब मोर ऑफन नहीं होती हैं, वॉर्स तो अब नहीं होती हैं, लेकिन हमें इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस का सामना रहता है
वहाँ पे भी सिविल डिफेंस के ये इदारे जो है वो काम आते हैं जी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट सिविल डिफेंस दीज डेज। इन दिनों शहरी दिफा के बारे में बहुत सारा बातचीत होती है। नेक्स्ट, will you have dash piece of cake? Will you have a little piece of cake? क्या आपके पास थोड़ा सा केक होगा? A little piece of cake? Will you have a little piece of cake? Guess the situation. बर्थडे हुई है, उसके बाद आप केक कटिंग के बाद केक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अब आपका और दिल चाह रहा है, and then you go to the auntie or the uncle or the anyone who is distributing the cake. तो आप जाके पूछेंगे और होगा थोड़ा सा आपके पास, तो will you have a little piece of cake? Got that. अब ये चार्ट हम ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद नंबर 5 पे आप देखिए व्हाट आर दैट, क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड्स, क्रॉस आउट, ओके, क्रॉस आउट, क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड, जो गलत है उसे क्रॉस आउट कर दीजिए, टिक करने को नहीं कह रहे। There is dash milk in the pot, go and get some from bazaar. There is dash in the pot, बर्तन में इतना दूध है, जाओ और जाके बाजार से कुछ ले आओ। तो फिर क्या होगा? There is much milk, there is little milk or a little milk. There is little milk, मतलब ना होने के बराबर, जैसे few ना होने के बराबर है, इसी तरह से little, there is little milk in the pot, go and get some from bazaar. So if little is right, the other two are wrong. So cross out the wrong one. Do not disturb me. I have dash work to do. मुझे परेशान मत करो, मेरे पास डैश काम है करने के लिए। कब ना परेशान करें? जब ज्यादा हो, ना हो, बहुत कम हो। So guess about it, think about it. The right one is do not disturb me. I have a lot of work to do. मुझे बहुत सारा काम करना है. I have a lot of work to do. The other two are wrong. Next, this parrot is making dash noise. I cannot sleep. The options are a lot of, little, some. बताओ. This parrot is making a lot of noise. I cannot sleep. बहुत शोर कर रहा है ये तोता. I cannot sleep. मैं सो नहीं सकता. Next, we know dash about ancient sin. हमें कदीम सिंध के बारे में डैश पता है. अब डैश में क्या पता है? बहुत पता है, बहुत ज्यादा पता है, थोड़ा पता है, ना होने के बराबर पता है. तो एंशिएंट सिन मतलब मोहनजोदड़ो. हम मोहनजोदड़ो के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं जानते ना, तो क्या होगा? we know few about ancient sin. Therefore the rest of the two are wrong. अगली एक्सरसाइजेस नॉन टेक्सचुअल हैं. नॉन टेक्सचुअल का मतलब होता है कि लिखनी नहीं है, लेकिन हम लिखवाएंगे आपसे. आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए इनकी, आप पढ़िए, बोलिए. The best thing to do is practice, and practice, because practice makes the man perfect. If you are eager, if you are interested to learn how to write and how to speak better sentences, good sentences, fluent sentences, you have to practice a lot. And in this case, you have to practice of all orders. You have to listen to these sentences, you have to speak, you have to repeat, you have to write, you have to translate. Come what may, whatever the ideas are, whatever the different people think about these things, there are always different things that people say that it is not necessary to translate. The translation English or any other language is not learned and blah 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 blah. But the thing is that you are very young, you have started learning this, you should do the practice and turn a deaf ear to all these
not doing anything ideas. Got it? So you have to practice a lot. You have to speak. Repeat after me again and again. Say the way I'm saying the sentences, and write as well. So नॉन टेक्सुअल है, लेकिन हम करेंगे, करना क्या है, नंबर 1 में that is supply full stop comma question mark and sign of exclamation wherever necessary. What do we call all this? क्या कहते हैं हम इसे? जी, to punctuate, punctuation. हम इंशाल्लाह जब क्लास में होंगे तो फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. हमें पता है कि what are the different punctuation marks, and where do we use them. Based on all that you have learned up till now, let's do the exercise. क्या कहा मैंने? मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ आप अब तक पढ़ते आए हैं, आप सीखते आए हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए गौर से सुनिए और इस एक्सरसाइज को फिनिश कीजिए. I bought some meat, sugar, milk and a pair of socks from the store. And mind you, you have to translate these sentences as well. हर exercise की translation करनी है. So I bought some meat, comma, sugar, comma, milk and a pair of socks. What are socks? You know that? G. And a pair of socks from the store. There are many things which are always found in pairs. एक मोजा नहीं लेके आते हम, दो मोजे मिलके it makes pair of socks, pair of spectacles, okay, pair of, what is this, pair of scissors, pair of scissors. So next, where do you propose to go from here? आपका यहाँ से कहाँ जाने का इरादा है, कहाँ, आपका मशवरा क्या है, कहाँ चले यहाँ से. So क्या साउंड कर रहा है? What kind of a sentence is this? Obviously you are right. This is a question. This is an interrogative sentence. और interrogative sentences को हम कैसे punctuate करते हैं? By marking question mark at the end of the sentence. बताइए क्या है जुमला? Where do you propose to go from here? आप यहाँ से कहाँ जाने का इरादा रखते हैं, कहाँ जाने का मशवरा देते हैं. सॉरी. I get up in the morning, take a bath, have breakfast and go to school. Some people practice otherwise. They just get up and go to school. ऐसा नहीं करना चाहिए. I get up in the morning, comma, take a bath, comma, have breakfast and go to school. Full stop. सुबह सवेरे उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, नाश्ता करता हूँ और फिर स्कूल चला जाता हूँ. नेक्स्ट पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे इसको? Would you be kind enough to tell me where this road leads to? Would you be kind enough? आप मेहरबानी करेंगे मुझे बताने की where this road leads to, कि ये सड़क यानी ये रास्ता कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है. तो क्या साउंड किया आपको? A question, a polite inquiry. So it has to be punctuated with the yes question mark. Next, देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको. जब सही से पढ़ेंगे तो पंक्चुएट भी सही से करेंगे. What is this? My God, my God, what have I done? My God, what have I done? ओ मेरे खुदा, what have I done? ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने क्या कर दिया है. So my God, जब भी आप कोई एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, अभी नेक्स्ट एक इंशाल्लाह वीडियो में हम सेंटेंसेस और काइंड ऑफ सेंटेंसेस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह जल्द ही बहुत सारी वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ. बी रेडी. और उसमें ना सिर्फ 9th को और 10th को, क्लास 8 को भी पार्टनर करेंगे. ये मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ. बुरी खबर पहले बता देनी चाहिए.
Class 8, 9th and 10th will share each video that I'll soon be uploading, inshallah ta'ala. So my God, what have I done? Okay, next. Rearrange the sentences by putting phrases in the correct form. जम्बल्ड अप हुए हुए हैं, आगे पीछे हुए हुए हैं, तो जुमले को उसके सही ऑर्डर में लिखिए. We meet on Sunday afternoon in the park always. जी बताइए. We meet on Sunday afternoon in the park always. We always meet in the park. We always meet in the park. Kab? On Sunday afternoon. Right. Next. In the office, I saw Jamil about an hour ago. So what is the main task? I saw Jamil. I saw Jamil. कहाँ देखा? In the office. कब देखा? An hour ago. I saw Jamil in the office an hour ago. I saw Jamil in the office an hour ago. मैंने जमील को 1 घंटे पहले ऑफिस में देखा. Next, I get up early on Sunday seldom. I seldom get up early on Sunday. I seldom get up early on Sunday. Seldom के मायने क्या है? Very rare. बहुत कम. Next. The bell, boys stand up when rings the teacher and enters the class. कहना क्या चाहते हो भाई? So, when the bell rings, यहाँ पे बीच की देखिए क्या स्ट्रक्चर, when rings the teacher. अच्छा नहीं, चलिए वापस आइए, क्या है बताइए? When the bell rings, the teacher enters the class and boys stand up. जब घंटा लगता है या घंटी बजती है, उस्ताद मोहतरम क्लास में दाखिल होते हैं, लड़के खड़े हो जाते हैं. Next, has been arranged to celebrate his passing the examination, the party by Salim's parents. क्लास 8 से आप पास होके आए हैं, नहीं पास, चलिए पास ही होके आए हैं. तो वहाँ पे आपने पढ़े थे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो ये जुमला भी पैसिव वॉइस में है. तो कैसे लिखेंगे इस जुमले को? क्या आना चाहिए सबसे पहले? The object of the sentence. So what has been arranged? A party has been arranged. What has been arranged? A party has been arranged. क्या पर्पस है उसका? To celebrate. To celebrate. क्या चीज? A party has been arranged. A party has been arranged. अब यहाँ पे हम जो एजेंट है वो पहले भी मेंशन कर सकते हैं ताकि जो पूरा इन्फिनेटिव पार्ट है वो आखिर में चला जाए. A party has been arranged by Salim's parents. किस चीज के लिए? To celebrate his passing the examination. To celebrate his passing the examination. तो सुनिएगा भी, रिपीट भी कीजिएगा और फिर लिखिएगा, right? And the last thing is mark the word you think is correct in the following. यहाँ पे आपको टिक करना है, क्रॉस आउट नहीं करना है.
The opposite of few is, बताइए, the opposite of few is less, little or many? Yes, many. So tick many. The opposite of ancient is, ancient माने कदीम. कदीम की opposite क्या होती है? नया नहीं होती. जदीद. And what is the word for jadid here? Modern. Modern. New. Old. Aged. The right thing is modern. Next. The opposite of a lot is, a lot की opposite क्या है? Little, much, more, none. Little, much, more or none. A lot की opposite क्या होनी चाहिए? A little. A little. A little तो है नहीं यहाँ पे. Therefore, none. Next, the opposite of city is, city का opposite क्या है? A town, a village, a country or a capital? Obviously, village. And the last thing is, the opposite of wide is, wide माने broad, broad माने चौड़ा, small, tiny, broad or narrow. The opposite of wide is narrow, tongue, patla. Okay, students, I hope that you must have learned a little from by reading all these sentences. Do your work neatly and cleanly. Get yourself ready for more and more learning, for more and more understanding. Hope to see you soon, and I wish that you do the work neatly and correctly. Thank you, Allah Hafiz.